اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی کلاس فرسٹ ایئر باب اول ہم پڑھ رہے تھے، تو باب اول میں سے انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ خصوصیات صفات کون سی تھیں؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس سے پہلے 3 انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ خصوصیات یعنی صفات پڑھ لی تھی۔ چوتھی صفت معصومیت سے آج پڑھیں گے، تو بچوں اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ تفصیل سے ہم پڑھ سکیں۔ معصومیت، جیسے کہ لفظ سے یہ بات واضح ہے کہ معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہونا، یہ صفت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ صفت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک تھے۔ کتاب سے پڑھ لیتے ہیں۔ معصومیت، چوتھی صفت، اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے۔ وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم اس سے پہلے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھ چکے تھے، معصومیت، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آیت مبارکہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو بتائی تھی میں نے، سورہ نجم کی آیت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی خواہشات سے کوئی بھی کام، اپنی چاہت سے کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ تو جو کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وحی کی گئی ہوتی ہے، وہی کام وہ کرتا ہے اور کہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کام انبیاء علیہم السلام سے ایسے ہوئے جو بظاہر ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ شاید یہ کام تو غلط تھا، شاید یہ کام نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کام اللہ تعالیٰ ان سے سرزد کرواتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے کام کرواتا ہے تاکہ اس کام سے امت کو کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ نبی کی شان اس کام سے کم نہیں ہوتی، نبی کی شان اس کام سے کم نہیں ہوتی۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو اور نماز قضا ہو جائے تو ہمیں ناممکن سے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو اور نبی اپنی مرضی سے اس کام کو حرام قرار دے۔ یہ مثالیں اس لیے بیان کی آپ کے سامنے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی ذات سے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی نے یہاں پر کوئی غلطی کی، نعوذ باللہ، یا نبی نے یہاں پر اس کام میں کوئی غلطی کی، یا نبی نے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی یا نافرمانی کی، نہیں، بلکہ وہ کام اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے کرواتے ہیں۔ اس کام میں امت کے لیے کوئی سبق مقصود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کام ان سے کرواتے ہیں۔ تو یہ ہے معصومیت کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی کام اپنی خواہش سے نہیں ہوتا، جو کام بھی ہوتا ہے وہ رب کی خواہش پر ہوتا ہے۔ 5ویں صفت انبیاء علیہ السلام کی واجب اطاعت۔ واجب جیسے لفظ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ لازم اور ضروری کو کہا جاتا ہے، اور اطاعت فرمانبرداری کو، بات ماننے کو، پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ تو واجب اطاعت تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک مشترکہ صفت یہ تھی کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان سب کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے۔ وہ جو کچھ کر کے بتائیں، وہ جو کچھ کر کے امت کو سکھلائیں، امت اس کے جیسے کرتے جائے۔ کتاب سے پڑھ لیتے ہیں۔ واجب اطاعت، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آیت مبارکہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ، وما ارسلنا، آپ کو پہلے بتا چکا تھا، عربی کلام میں بعض اوقات الفاظ اس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ان کے اندر مضبوطی اور پختگی پیدا کی جا سکے۔ وما ارسلنا
मिर रसूलिन, हमने किसी भी रसूल को नहीं भेजा, इल्ला मगर लियुताअ बिइज़्निल्लाह, ताकि अल्लाह के हुक्म से उसकी पैरवी उसकी इताअत की जाए। हमारा माना हम क्या करेंगे कि हमने जितने भी रसूलों को भेजा इसलिए ताकि अल्लाह के हुक्म से उनकी पैरवी की जाए। तो ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मुश्तरका खसूसियत और सिफत है कि उनको अल्लाह ताला दुनिया में इसलिए भेजता है ताकि उनकी पैरवी की जाए, उनका इत्तिबा किया जाए। वाजिब इताअत, अंबिया अलैहिस्सलाम की इताअत व पैरवी ज़रूरी होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, सूरह निसा की आयत। और हमने जो भी रसूल भेजा वो इस गरज से कि उसकी इताअत अल्लाह के हुक्म से की जाए। नबी अल्लाह का रास्ता दिखाता है। बेटा यहाँ से नोट कर लें, आपको बता रहा हूँ, ये जो आखिर में 2 लाइनें या 3 लाइनें हैं, नोट करें इसको, ये MCQs हैं तकरीबन सारे के सारे, छोटी छोटी लाइनें हैं, ये तमाम MCQs हैं, नोट करें इसको। नबी अल्लाह का रास्ता दिखाता है, MCQs है ये, इसलिए उसकी इताअत डैश की इताअत होती है। अब इस जुमले में से 2 मिसिंग वर्ड मैं बता सकता हूँ, डैश की इताअत होती है, ये दोनों, इनमें से कोई आप एक वक्त मिसिंग कर दें कि नबी की इताअत अल्लाह की इताअत होती है या अल्लाह की इताअत नबी की इताअत होती है। नोट कर लिया आपने इसको, ठीक। आगे, इसीलिए पैगंबर किताबुल्लाह का शारिह होता है, नोट करें इसको, इसीलिए डैश किताबुल्लाह का डैश होता है, इसीलिए डैश फिलिंग द ब्लैंक्स, इसीलिए पैगंबर किताबुल्लाह का अल्लाह की किताब का शारिह होता है। पास पेपर का बहुत मशहूर MCQs है ये। शारिह मतलब किताब, अल्लाह की किताब की तशरीह करने वाला, वजाहत करने वाला, उसको खोल कर बयान करने वाला, उसके मानी व मतलब समझाने वाला। तो क्या MCQs आपको बताया, पैगंबर किताबुल्लाह का अल्लाह की किताब का शारिह होता है, तशरीह करने वाला होता है। उम्मत का मुअल्लिम और मुरब्बी होता है। इस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं लिखे होते, आप इसको लिख लें। बाज़ औक़ात बच्चे उर्दू में इसको अजीब सा पढ़ते हैं, ठीक नहीं होता, इसको लिख लें। उम्मत का मुअल्लिम, लाम के नीचे ज़ेर लिख लें तो बेहतर होगा, मुअल्लिम, इसलिए कि मुअल्लम और मुअल्लिम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुअल्लिम सिखाने वाला, इल्म देने वाला, और मुअल्लम सिखाया हुआ, जिसको सिखाया जाता है। तो मुअल्लिम उम्मत का मुअल्लिम होता है, यानी उम्मत को तालीम देता है, सिखाता है, ठीक। और मुरब्बी, ये लफ्ज़ भी ज़रा ज़बर ज़ेर पेश के साथ लिख लें तो अच्छा होगा, मुरब्बी, तरबियत करने वाला। बाज़ बच्चे इसको बड़ा अजीब सा उर्दू में पढ़ते हैं। उम्मत का मुअल्लिम व मुरब्बी होता है, मुरब्बी है तरबियत से, तरबियत करने वाला, तरबियत आप जानते हैं, इस्लाह करने वाले को कहते हैं। तो उम्मत का मुअल्लिम और मुरब्बी होता है। उम्मत के लिए नमूना तकलीद होता है, डैश उम्मत के लिए नमूना तकलीद होता है, कौन? नबी। नमूना तकलीद किसे कहते हैं? नमूना कहते हैं मिसाल को, एग्जाम्पल को, और तकलीद कहते हैं कि किसी के पीछे चलना बगैर उससे दलील तलब किए हुए, यानी मैं आपकी बात मानता हूँ लेकिन आपसे रीजनिंग नहीं करता हूँ, तो आप किसी की बात को माने बगैर रीज़न के, उसको तकलीद कहते हैं। किसी के पीछे चलना, उसको रीजनिंग किए बगैर, इसको तकलीद कहते हैं। तो उम्मत के लिए नमूना तकलीद होता है, यानी नबी की ज़ात ऐसी होती है कि पूरी उम्मत उसके पीछे चलती है, उसकी बात मानती है। कानून इलाही का शारिह होता है, MCQ से इसको भी नोट करें बेटा। कानून इलाही का शारिह होता है कौन? नबी होता है। कानून इलाही की तशरीह करने वाला, कानून आप जानते हैं ज़ाब्ते को कहते हैं, और इलाही अल्लाह ताला, कानून इलाही अल्लाह ताला का जो कानून होता है उसकी वो तशरीह करने वाला होता है। और काजी और हकम होता है, काजी और हकम का मतलब फ़ैसला सुनाने वाला, फ़ैसला करने वाला होता है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? वाजिब इताअत। वाजिब इताअत, इसके मुतालिक एक और कुरानी आयत भी आप नोट कर लें, बहुत मशहूर आयत है। एक आयत ये बता दी, दूसरी आयत ये बता दी, और तीसरी आयत
चंद एक आयतें आपको बता दी, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और तीसरी आयत कौन सी बताई, मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। तो यहाँ तक आज का सबक समझ आ गया। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खसूसियात में से, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुश्तरका सिफ़ात में से कुल कितनी सिफ़ात थी हमने पढ़ी थी, 5 सिफ़ात थी। उनमें से 3 सिफ़ात को हमने तफसील के साथ पहली क्लास में पढ़ लिया था, बशरियत को, अमीन को और तबलीग अहकाम इलाही। इनको हम पिछले लेसन में तफसील से पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में हमने मासूमियत पढ़ा। मासूमियत का मतलब जैसे कि आपके सामने है, मासूम अनिल ख़ता, गलती से, गुनाह से पाक। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गुनाहों से पाक व साफ़ हुआ करती है। उनकी ज़िंदगी में कोई काम उनकी अपनी चाहत से नहीं होता, बल्कि वो जो भी काम करते हैं वो अल्लाह के कहने से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं। अगर हमें उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नज़र आए कि जिस पर हमारा जहन इस तरफ जाता हो कि ये काम तो गोया अल्लाह की नाफरमानी है, या ये काम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, या ये हुक्म अदूली है, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला वो काम उनसे करवाता है, वजह ताकि उस काम के ज़रिए से उम्मत को कोई सबक देना मकसूद होता है। जैसे उसकी मैंने एक मिसाल आपके सामने अर्ज़ कर दी। तो मासूमियत कहते हैं अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का गुनाहों से पाक होना। वाजिब इताअत किसे कहते हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करना। कुरानी आयत हमने कौन सी पढ़ी, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जितने भी रसूलों को भेजा इसलिए ताकि अल्लाह के हुक्म से उनकी पैरवी की जाए, उनका इत्तिबा किया जाए। और दूसरी आयत वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, अल्लाह रसूल की इताअत करो। और तीसरी आयत हमने कौन सी पढ़ी, मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात, ये आपको मैं पहले लिखवा चुका था कि ये तफसीली सवाल है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खसूसियात, ये तफसीली सवाल है, इसको नोट कर लें। इसके अंदर जितने MCQs थे वो भी आपको बता दिए हैं। और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुश्तरका सिफ़ात, मुश्तरका खसूसियात की तादाद जो आपकी किताब में दी गई है वो उनकी तादाद 5 है। उनमें से पहली बशरियत, दूसरा अमीन, तीसरा तबलीग अहकाम इलाही, चौथा मासूमियत और 5वां वाजिब इताअत। तो आप जब इस तफसीली सवाल को याद करने के लिए बैठेंगे तो मेरा क्लास में पढ़ाने का तरीक़ाकार ये है कि मैं सबसे पहले जब ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करता हूँ तो ये जो इसके उन्वानात हैं, ये किताब में क्लास में तमाम बच्चों से पहले ज़बानी सुनता हूँ। आप जब इसको याद करने के लिए, तफसीली सवाल को याद करने के लिए बैठेंगे तो आप सबसे पहले इन 5 के नाम को ज़बानी याद करेंगे। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसियात, मुश्तरका सिफ़ात, नंबर 1 बशरियत, नंबर 2 अमीन, नंबर 3 तबलीग अहकाम इलाही, नंबर 4 मासूमियत, नंबर 5 वाजिब इताअत। ऐसे आपने इसको 3-4 बार आपने पढ़ना है। उसके बाद आंखें बंद करके आपने इसको एक दफ़ा अपने साथ रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है कि ये मुझे याद हो गया, नहीं हो गया। याद हो गया तो 2-3 दफ़ा आपने इन 5 को एक दफ़ा लिख लेना है। ये रिहर्सल है, ये प्रैक्टिस है इस बात की कि जब आपसे फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन तफसीली सवाल लिखा जाता है तो उसके पेपर चेक करते वक्त जो पॉइंट्स चेक करने वालों को दिए जाते हैं उनमें सबसे पहले निसाबी किताब के जो उन्वानात होते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, जो हमें इस सवाल में 5 दिए गए हैं, तो सबसे पहले वो चेक किए जाते हैं। अगर आपने वो निसाबी उन्वानात तमाम के तमाम लिखे हुए हैं तो आपको उसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। और अगर आपने निसाबी उन्वानात कम लिखे हैं, अधूरे लिखे हैं और इजाफी भी लिखे हैं तो फिर भी आपके नंबर मुकम्मल आपको नहीं मिल सकते। सबसे पहली बात, जो निसाबी किताब में आपको उन्वानात दिए गए हैं उसको मुकम्मल तौर पे लिखना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आज के सबक में जो आज अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुश्तरका सिफ़ात थी उसको हमने पढ़ा, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में इंशाअल्लाह, अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अलैहिस्सलाम की सिफ़ात के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जो अल्लाह ताला ने खसूसियात आपको अता दी थी, जिसको हम फेडरल बोर्ड के सवाल में रिसालत मुहम्मदी की खसूसियात कहते हैं, उसको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे के तरीके से याद हो गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।